الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اچھا جی، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا فتویٰ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے علماء کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، ٹھیک ہے، اس کی تفسیروں کو، ڈیٹیلز کو اور قومی تاریخ کو بھی پلٹ دیا۔ اوہام اور قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو، اب جو انہوں نے خیال آزاری کی تھی نا وہ بھی ڈال دی اس میں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ حابیل اور قابیل کے قصے میں جو عورت کی ایڈیشن ہے نا، اوتھینٹک بائبل کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ عورت کے چکر میں لڑائی ہوئی تھی، دونوں بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے جھگڑے کی بنیاد کوئی عورت نہیں بتائی گئی تھی۔ یہ انہوں نے ایڈیشن کر کے اتنا اس کو پکا حصہ کر لیا کہ آج تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ حسین تھی تو وہ یہ تھا تو وہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اتنی ڈیٹیل بائبل میں بھی اس طرح نہیں ہے، بہرحال جیسے ورڈ آف گاڈ بنا دی گئی ہے۔ میں بائبل پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں اس بات کا۔ کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ ہر تاریخی افسانہ، ٹھیک ہے، اور عقائد جو اپنی مرضی کے ان کو پسند تھے، ٹھیک ہے، قانون اجتہاد جس سے مجموعہ کتب مقدسہ مطلب بائبل میں جگہ پالی، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں نے، ان کے اپنے قول، ان کی اپنی نفسیات جو انہوں نے بنا لی تھی، انہوں نے جو قصے کر لیے تھے، انہوں نے جو عکس کیا اس بات سے، اس کو پورا ورڈ آف گاڈ بنا لیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ لازم کر دیا کہ اس کتاب پر جو نہیں یقین کرے گا وہ دین میں نہیں ہے، خارج دین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے کہ بائبل پہ یقین کرنا اس وقت ضروری تھا، لیکن ایڈیشن کرنے کے بعد کیا ہوا؟ جو ایڈیشن والی چیزیں جو اوتھینٹک ہے اس کو چینج کرنا شروع ہو گئے، بہت چینجز، ایسی چینجز کی بھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ آگے پڑھیں بائبل میں، تو وہ قصہ پڑھ کے آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ معاف کرے انہوں نے ایسی گھٹیا باتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیم ود حابیل اور قابیل والے قصے میں بہت خطرناک قسم کے ایڈیشن ہوئے، سیم ود حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کیس میں بھی انہوں نے عورت کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے، کہ عورت نے بھکایا، جبکہ قرآن یہ بات صاف کہتا ہے کہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا۔ تو آپ دیکھیے، اور ان بائبل کے اندر یہ نہیں ہے کہ عورت نے پھسلایا، بائبل کے اندر بھی یہی ایز اٹ از آیت ہے، لیکن جو ان کی ورڈ آف گاڈ ایڈیشن ہے کیونکہ جو اس پہ چلتے ہیں تو وہ اس کے اندر یہ ایڈیشن ہے۔ تو اس طرح جو قصوں کو تروڑا مروڑا نا، جب بھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ بائبل اور انجیل سے یہ توریت سے بائبل سے چیزیں لی جاتی ہیں تو انہوں نے چینجز کر رکھی ہوتی ہیں۔ اس وقت کے ان کے جو علماء تھے نا انہوں نے یہ کام کر رکھا تھا۔ پچھلی آیت میں جو ہم نے چیز پڑھی تھی عام لوگ، اب پہلے میں 79 سے 78 کو دونوں کو ایک ساتھ سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم تدبر کریں کہ دیکھیں علماء اصل میں علماء کی، میں نے پچھلی ہماری جو آیت گزری میں کیا بات تھی کہ اگر کوئی علماء کوئی بات کہہ دینا تو بندے کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات تو صحیح ہوگی نا، اتنا علم جانتے ہیں، اس پہ ایک طریقے سے ہم آنکھ بند کر کے عمل کرنے والی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے، تصدیق نہیں کرتے، اور یا آپ کو وہ شخص اتنا پسند ہوتا ہے کہ آپ اس کے اتنے بڑے فین ہوتے ہیں اس علماء کے عالم دین کے کہ اس کی کوئی رائے ثانی ہے، اس نے خود کہا بھی ہو کہ یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پہ یقین، لیکن ہم اس کی رائے ثانی کو ہی اتنا پروموٹ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے لازم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے، ان کی اس قرآن کو سمجھ کے رائے ثانی ہے کوئی۔ فار ایگزامپل میں کہوں یہ میری اپنی رائے ہے فلاں چیز میں، تو وہ میری رائے ہے، آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ سوچا میں بھی یہ پہلے ہوں اور اوکے آئی ایم ایگری پارشلی ایگری وتھ یو، آئی ایم ناٹ ایگری وتھ یو ابھی، تو ایسی رائے قائم آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ یہی بات لکھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو قرآن میں جو بات لکھی ہے وہ بات جو لکھی ہے اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی راکٹ سائنس ڈال کے نہیں لکھی، ابھی جو اوپر کی بات ہے اس میں ہمیں صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہسٹری یہاں پہ بتائی جا رہی ہے ہمیں، اور جب اب اس زمانے میں تو عرب اس سچویشن سے گزر رہے تھے تو ان کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس طرح ایڈیشن کر چکے تھے کہ ان کے علم میں یہ بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ہو۔ پیچھے سے آپ کہنے کیجیے، پیچھے آیت کا جو ہم نے تدبر کیا تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے پاس تھی، کریکٹ تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ان کو بھی ڈر تھا کہ ابھی صحیح ہو گیا تو ہمیں مسئلہ آ جائے گا اور پھر ہم کیا کریں گے، ہم تو پھر اوپر حساب کتاب میں ہمیں اللہ کے پاس مشکلوں کی ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو ہے، اور وہاں ان کا بلیف کیا تھا، میں پرانی آیت کو اس آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، کنیکٹڈ ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہاں ان کا یہ تھا کہ ہم ان کا بلیف اس زمانے میں یہود کا نصارہ کا بلیف کیا تھا، یہودیوں کا خاص طور پہ ان کے 3 فرقے تھے، ان 3 فرقوں میں جو ہے اپنی اپنی رائے ثانی تھی، اور اس میں ان کا بلیف یہ تھا کہ ان میں سے ایک فرقے کا بہت ہی سخت بلیف یہ تھا کہ ہم غلطی
हम जो है चूजन वन है, ठीक है, चूजन वन तो शुरू में ये लोग हुए थे हमारी तरह, ठीक है, और हम पे जो है दोजख जो है वो नहीं, और दोजख की आग जो है ना माफ है। अच्छा, और दूसरी राय दूसरे गिरोह ने ये निकाली कि हम कोई गलती करेंगे तो थोड़े से अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए बस दोजख का जो सजा की, जो गलत काम किया उसकी सजा काट करके हम वापस जन्नत में डाल दिए जाएंगे, तो हम दोजख में नहीं रहेंगे हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने बिलीवर्स की बात की है कुरान के अंदर, अल्लाह ताला ने क्या कहा है वो आगे आएगा भी, तो मैं आगे समझाऊंगी इस चीज को, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे आयत में दोजख का जिक्र आ रहा है, तो मैं आगे उसको लेके समझाऊंगी इस बात को। तो इस तरह चीजें बस की हुई हैं। अब इन्होंने जो चीजें डाली थी चेंजेस देखिए आप फतवों में लगा दिया, साफ जिक्र इधर फतवों का, ठीक है, अपनी मकसद के फतवे, अपने मंदरक फतवों की बात यहाँ से समझिए कि ये बड़ी साल का समझना मसला नहीं है। उनकी चीज में क्या चीज फतवे आए हुए थे जी, पॉप इनका है, उसने फतवा दे दिया, पॉप भी चलते हैं ना, उसने जो कह दिया अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, जायनिस किस्म के लोग हैं, इनके अंदर भी मैंने आपको बताया फिर अभी ये 3 फिरकों की बात हो रही है इस वक्त, ठीक है, अब इनके उस वक्त भी ये जायनिस किस्म का फिरका मौजूद था, ठीक है, तो उसने अपनी चीजें ये अगस की हुई थी कि हम चहीते तरीन हैं और हम पे आंख जो है वो हराम है और हम जन्नती ही हैं, तो और बाकी लोग जो नहीं मान रहे, जो हमारी बात नहीं समझ रहे, उनको कत्ल करना लाजिम है, ये इन्होंने अगस किया हुआ था। और अभी तक ये जो फलस्तीन में भी फसाद कर रहे हैं ये वही वाले लोग हैं, और अब ये सर चढ़ के बोल रहे हैं, इनकी जहानत पे कोई शक ना कीजिए, लेकिन ईवल जीनियस नहीं होते वो है ये, ठीक है, तो ईवल जीनियस वाली हरकतें कर रहे हैं, आपको डर नहीं है अब इनको, क्योंकि उनको तो यकीन है मैं तो जन्नती मिलेगी, और ये उस मसीहा का इंतजार कर रहे हुए दज्जाल। तो ये वो चीजें, अब एडिशन आप देखिए, अब हमारे यहाँ अपनी मर्जी से हमारे यहाँ होता है, कवानीन में भी हमारे अपने आइन में देख लीजिए, कवानीन में एडिशन है, कुरान और सुन्नत का नाम है और एडिशन है, सेम विद दैट टाइम। और फिर आप ये देख लीजिए कि फतवे, कोई छोटे से छोटा तलाक का मामला लीजिए, ऐसे ऐसे फतवे सुन्नत को जो ऐसा बना लिया कि बस वो फर्ज हो गई है। 4 शादियों की सुन्नत को देख लीजिए आप, एक उलमा लगे हुए फर्ज बनाने पे लगे हुए, बस फर्ज हो जाए, घर टूट जाए, एक बचता नहीं दूसरा टूट जाता है, ये हो जाता है, उन्हें दो बच्चे नहीं मिलाने दे रही पहली बीवी, अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने फतवा दे देना आप तो उस फतवे पे अंदर तुम चलेंगे भैया, वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप दूसरे से पैदा करो, दूसरे से बच्चे एंजॉय करो, वो जैसे भी पाल रहे पलने दो, वो भी आपके बच्चे। ये मैं इस तरह की चीजें सुन चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि आप अपने से राय नहीं दे सकते, कुरान इस हवाले से सुन्नत इस हवाले से क्या कह रही है, किस तरीके पे इन चीजों को रखना है, आप एज इट इज बताइए कि क्या मुश्किलात पेश आएंगी, तो आप इतने केपेबल इनफ हैं या नहीं है। लेकिन उस सुन्नत को लोग कहेंगे बिना फीमेल आप इस सुन्नत पे आ गई, मैं इस सुन्नत की मिसाल दे रही हूँ क्योंकि आजकल ये इशू चल रहा है, तो मैंने सोचा कि कॉमन मिसाल दूसरा तलाक का जी, थर्ड तलाक है, अच्छा फिर उसके बाद फौरन बाद होश आ जाता है कि नहीं अब तो मुझे रुजू करना, फौरन बाद भी नहीं आता, मतलब 6 महीने 7 महीने गुजर गए या साल भर गुजर गया, अब जो है कि जाहिर है एक कपल को अपनी एक आदत होती है, अब किसी तरह मिल जाए, मुश्किलात आ रही है, अब वो तो ये इतना कर देती थी, वो इतना कर देते थे, जो भी XYZ, अब उसके बाद रुजू का चक्कर सब खत्म हो गया, उसमें भी निकालना है, अब कुछ नहीं तो हलाले की जो है वो तौजिया निकालनी है, भाई ऐसे ऐसे बारीक बीनी चीजें निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीकों से, इसमें गलत फतवे बहुत आ रहे हैं, जो सही हद तक चीजें हैं वहां तक अलावा, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, बस नहीं खत्म, हलाले के उल्टे सीधे तरीके बता के गंद डाल दिए उसके अंदर। फिलहाल ये चीजें मैंने हाईलाइट इसलिए की, बाकी तफसील पे मैं नहीं जा रही, लेकिन ये वो फतवे कॉमन फतवे, इसके अलावा और बहुत से कॉमन फतवे हैं, पर्दे के ऊपर कॉमन चीजें आ जा रही हैं कि बस किसी तरह गुंजाइश ढूंढ के नंगे होने का शौक हो जाए औरतों को, मेरा जैसे मेरी मर्जी हो के बाहर निकल जाए, इसके फतवे कोई मिल जाए हमें, ठीक है, दिस इज ये हो रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास जो है कुरान के लफ्ज को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए अरबी जुबान सीखनी चाहिए, बच्चों को भी हमें कोशिश करनी चाहिए, आजकल के बच्चों को पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, मैं सही मानूं में कहूँ तो हर माँ बाप परेशान है। तो दूसरी चीज़ ये कि हम शख्सियत परस्ती पे नहीं जाए, कोई हमारा फेवरेट हो सकता है, कोई स्कॉलर हमारा फेवरेट होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये है कि शख्सियत परस्ती की उसके अंदर वो चीज़ है कि बस उसी पे उनका ही बस खाली ये पूजना ना शुरू हो जाए, मेरा मकसद ये, ठीक है, तो अल्लाह ने इस चीज़ को नहीं, इसी चीज़ों की वजह से फिर एडिशन वालों के बाबू के पीछे हम भागते हैं, और उसके बाद क्या होता है जी, वो अपनी मार्केटें चलाते हैं, उससे अपनी मार्केट चला के पैसा कमाते हैं, जो है उनके इस तरह के उलमाए दीन ने इसका बिजनेस बना लेते हैं, ये दौरे उस्मानिया में भी ये बिजनेस बना है, जरा हिस्ट्री पढ़िए, जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, जब ये चीज़ें बिजनेस बनी है, फतवे बिजनेस बने, उलमा बिजनेस बने, उलमा खरीदे जाते थे, अपनी मर्जी के फतवे लगाए जाते थे, फलां बेटा बैठ सकता है, ये हो सकता है, फलां हो सकता है, खिलाफत में अपनी एडिशन करी थी उस्मानिया सल्तनत ने एंड में, आप देखिए फिर किस तरह खतरनाक डाउनफॉल आया, ठीक है। अब आप आ जाइए इसी तरह हमारी इंडो पाक की जो मुगल, उसमें भी यही हुआ था, एडिशन, उलमा से एडिशन, उलमा बाय एंड देन व्हाट हैपेंड। और नए दौर में जो सबसे ज्यादा निकला 70s के अंदर जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भुट्टो ने लगाई थी, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सारी उम्मत मुसलमान को कादियानियत की, ठीक है, कि ये कादियानी जो है मुसलमान नहीं है और ये बंदा गलत था, वो जिसने अपने आप को नबी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए ना कि चीजें गलत है तो गलत है, बस ये नहीं है तो गलत इस गलत, अब उसमें गुंजाइश निकालेंगे, वो ऐसे अच्छे वो ये, हम ये नहीं रिजिट बनने कर, हम कह रहे हैं ये चीज उन्होंने गलत की, चीज उनको प्लाने नहीं देनी, खत्म, ये चीज जहाँ लागू ना लागू, अब हमें हजम नहीं हो रहा, जो चीज हमें अपने हिसाब से हजम नहीं होती ना वो हम नहीं करते। उस दौर में उस वक्त के उलमाज और उस वक्त के लोग जो उनके फॉलोवर्स थे अपनी मर्जी की चीज उठा रहे हैं, जो उलमा सामने अपनी मर्जी की चीज उठा ली और उस पर फॉलो करा दिया, उनके पैरोकार आंख बंद करके उसको फॉलो करे थे। आज हम रेप्लिका हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, झांकी अपने इर्द गिर्द हमें नजर आ जाएगा, रेप्लिका है। अब बड़े बूढ़ों की बात जगह मैंने इस हद तक देखा कि अल्लाह कुरान और सुन्नत से बात साबित हो गई, अब वो कोई छोटी बहन कह रही है, छोटा भाई कह रहा है या बीवी कह रही है, तो अब वो माँ नहीं मान रही है क्योंकि उनका कीदा उस बिदअत और शिर्क की तरफ था। तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि ये उसको साबित, अपने आप को, अपने बापा जी को सही साबित करने, अपने उस रस्म और रिवाज को सही साबित करने, उस करेक्ट पर्सन को मरोड़ टरोड़ के गलत कर देंगे, कुरान से दलील आएंगे, उसको दलील और रुस्वा करने की कोशिश करेंगे। मिसाल आप ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे मुश्किल से 12 पैरोकार होंगे, और उस जमाने में ये मतलब इतना खतरनाक फितना होता है, जो वर्ड ऑफ गॉड है ना, ये फिर क्या करते हैं कि वो उलमाज इतने फतवे जारी करके फाजिल को कत्ल करते थे,
और या कोई टेढ़े बंदे का बंदा होगा जो छोटे पैमाने पे, जो मैं आपको भी समझा रही थी कि कोई छोटा बंदा बोल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई इसको दिखाई तो मतलब से छोटा है, एहतराम नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रहा, वो बदतमीजी नहीं कर रहा, सही से बात बोल दी, बस खत्म कर दी उसने बोल के। अमल करना करें ना करें, लेकिन वो क्या, उसके पीछे अपनी पूरी जान मार देंगे। इसको बायकॉट करो, इससे अब कोई बात ना करे, इसको काट दो, इसका रिश्ता टुटवा दो, इसको तलाक दे दो अगर लड़की ने बोल दिया, और घर तोड़ दिए जाते हैं भाई। ये मैं आपको सच्ची मिसालें दे रही हूँ, अपने से मन धड़क कहानी नहीं बोल रही हूँ। किस वजह से? सिर्फ महज इन चीजों की वजह से हम कुरानी दलीलें लाके, कुरान में तो क्या, अगर किसी बीवी ने फिल फर्ज, एक मिसाल सच्ची दे रही हूँ, उसने बोला कि आप ये शिर्क की तरफ चल रहे हैं, ये गलत है, ठीक है, वालिदा को समझाना मुश्किल है, बहन को समझाना मुश्किल है, आपको अपना अकीदा छोड़ना मुश्किल है, आप सिर्फ पढ़िए कुरान। आप तो खुद हाफिज है, हाफिज के पास एक टैग होता है, एंड व्हेन हाफिज के पास एक टैग होता है तो लोग उसको देखते हैं, फिर हाजी भी हो, लोग उसको देखते हैं, और उसके बावजूद उसका अकीदा ठीक ना हो, वो बिगड़ा हुआ, और अगले बंदे को ये दो टैग नहीं है, लेकिन वो ठीक है, और वो उसको ठीक करना चाह रहा है कि शिर्क पे मत जाओ, शिर्क की माफी नहीं है। और खुद ही सुनो, उसने किसी तंजीम में डाल के या किसी कुरान की दावत, कुरान देख के कि इसको पढ़ के आप कुछ समझे, अच्छा उसमें से भी मरोड़ तोड़ ऐसे निकालेंगे वो, पहले तो कुछ समझेंगे, समझने के बाद फिर वो जाहिर है जो प्रेशराइज हैं अपने अकायद पर, किससे प्रेशराइज है, मुझे किसी बाबा जी को नहीं मान रहे, उनकी अम्मी जिस जो कह रही है वो सही, ठीक है, उनकी बहन जो कह रही है वो सही, तो इस पे क्या होता है कि प्रेशराइज होके फिर वो ढूंढते दलील, फिर आके उसको सेटिस्फाई करते हैं, फला से हकायक से ये बात मिल रही है, फला से ये मिल रही है, इसका ये मतलब है, सुन्नत में यूं भी है, अब अपनी से कोई सुन्नत आ जाएगी, वो सही है ही नहीं। अगले के पास इतना इल्म होता है कि वो, आप इल्म रखिए, देखिए, जानिए, शऊर रखिए, दीन का शऊर रखेंगे तो फिर आप आर्ग्यू कर सकेंगे, और फिर आर्ग्यू में भी झड़ी, बहुत ज्यादा जाहिल लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगे। आप कहते हैं ठीक है, आपको नहीं समझ आया, मुझे भी नहीं समझ आ रही है आपकी बात, मेरे हिसाब से कुरान में सिंपल बात लिखी हुई है, शिर्क मना है और ये शिर्क है, दैट्स इट। आप उसमें नहीं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, चुप हो जाइए, ठीक है, चुप सान लीजिए। तो अपने घर में बच्चों को तवज्जो दीजिए, ये दीजिए, लेकिन उस वक्त क्या होता है, पीछे लगने वाले, जो मैं ये किस्सा सच्ची सुना रही हूँ, तो उसमें पीछे लगने वाले क्या दलील लेके आके डिवोर्स कराते हैं या घर तोड़ देते हैं, या बात अपनी मनवाने के लिए, इस हद तक जो इस किस्से में हुआ, उसमें ये बात हुई कि जी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और का किस्सा सुनाया गया, और बताया गया कि वालिद साहब जब घर आए तो उन्होंने कहा ये चौखट छोड़ दो, तो बस देखो वालिद साहब का हुक्म था चौखट छोड़ दो, तो मैं तो, वालिद साहब तो रहे नहीं, मेरे ख्वाब में वालिद साहब आए, उन्होंने कहा चौखट छोड़ दो, वाजी, अब आए नहीं आए वल्लाह अलम, चौखट किसमें छुड़वा दो, जो बीवी नेक रास्ते पे तुम्हें लगा रही है, जिसकी वजह से अल्लाह की हिदायत अल्लाह के हुक्म से मिल रही है, ठीक है, वही चौखट छोड़ के आखिर में बिल्कुल ही बर्बादी की तरफ लगा दिया, ठीक है। तो ये मैं एक सच्चा किस्सा मुझे याद आ गया, मैंने आपको सुनाया सिर्फ अकायद की बेस पे, सिर्फ उस चीज की बेस पे जो उनके, वो जिस अकायद पे चलती थी, जिस बाबा जी को मानती थी, उनके उस पर जी उन्होंने कह दिया था कि इस औरत को छुड़ाओ, उनके कहने पे कहाँ से कहाँ कहानी चली, अपनी पर्सनल जेलसीज पे, अपनी पर्सनल ख्वाहिशात को दीन का लुबादा पहना कर, क्योंकि खुद तहज्जुद गुजार भी, खुद हाजी भी, खुद हाफिज भी, लेकिन अकीदा ठीक नहीं, शिर्क में मुलव्वस, झूठ, ये सारी चीजें, और उसमें क्या बर्बादी हुई। इसके साथ सिर्फ औरत अकेली नहीं होती, बच्चे भी होते हैं, ठीक है, वो भी रुल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने जो नेक लोग होते हैं उनको संभाल लिया होता है। मैंने कंडीशन देखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी स्टेबल एंड स्ट्रांग वुमन शी इज। तो आप देखें, और जो उधर बुरा हाल हुआ ना, वो तो रहने ही दें। मैं एक हिस्सा इसलिए सुनाया ट्रू मैंने आपको कि ये चीजें जो यूं चेंजेस होती हैं ना, तो ये इस हद तक इंसान गिरता है। स्मॉल पैमाने पे समझाने का मतलब ये कि घर में स्मॉल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, फिर ऐसी स्मॉल स्मॉल लोग जब बढ़ते चले जाते हैं, वो एक कौम बनाते हैं। जब वो कौम इस चीज में अमल हो जाती है, मेजॉरिटी इस तरह की होती है, जाहिल और जुल्फा, मतलब एमए पास, डबल एमए पास, डबल मास्टर्स, डबल पीएचडी भी हो जाए, उसके बावजूद ये जो मैंने किस्सा सुना, इसमें कोई जाहिल सास नहीं थी, एमए पास लड़का कोई जाहिल नहीं था, हाफिज था। तो ये मैं चीजें वो बता रही हूँ, जाहिल नहीं होने के बाद, मतलब दुनियावी इल्म था एक के पास, तो हाफिज भी होगा, जो हाफिज टैग के ले लिया है, फॉर द टैग, लोगों को बता सकेंगे हमारा बेटा हाफिज है, तो हमें जन्नत में लेके जाएगा। उसको जी पहले पारे के बाद तो कुछ याद ही नहीं है, और तो उसको फखर से वो कहता है को क्या हुआ, तुम लाओ मेरे को बताओ, मुझे तो याद नहीं है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन, ये अकड़ फिर सारी जब सुपर ईगो की बात आ जाती है, वो चीजें आ जाती हैं, क्योंकि अपने अकीदे से उन्होंने कह दिया कि जी हाफिज तो बख्श दिए जाएंगे, बख्शे बख्शाए हैं, उनके बाबा जी ने कह दिया। ये मैं ट्रू मिसाल आपको दे रही हूँ, आपको बिलीव होगा कि इस कदर तक जहालत है, जबकि पढ़ा लिखा घराना है, पढ़ी लिखी माँ है, और उसने एज अ दुनिया भी पढ़ी लिखी है, लेकिन दीन का शऊर नहीं है, लैक है। कुरान पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कुरान रोज सिर्फ पढ़ रहे हैं कि मुझे उसका जो है पढ़ने का सवाब मिलते जाए, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उसमें वजीफे पढ़ रहे हैं, ये वजीफे से ये होगा, ये वजीफे से वो होगा,
ताजुद आप उठ के पढ़ लें 2 नफिल, उसके बाद अल्लाह से ऐसी दुआ कर लें, बात कर लें उस टाइम आप अल्लाह से दुआ के अंदाज में, आप देखिए वो कैसे अर्श पे जाती है। अब आप किस लिए उठे हैं, बाबा जी ने कहा था तहज्जुद पे पढ़ने से ये तो वो तो फलाना धमाका, दीज थिंग डिस्ट्रॉय यू, खत्म कर देती हैं। इसे शिया सुन्नी का जो एक प्रॉब्लम चल चुका है शिया के अपने फिरके, ये बहुत सारी चीज इस तरह खुल जाती है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि एडिशन ऐसी जिसने भी की अंधाधुन फॉलो मत कीजिए। अभी आजकल एथिसिज्म का चल गया है, ठीक है, साइंस की प्रूफ डेथ, ये पहले भी था लेकिन अब बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। तो वो तो बिल्कुल इस्लाम को साइड पे ना, आप लोग को सुपरस्टिशियस और वो जो ये एक अलग चीज चल गई। अच्छा, किसी की राजधानी ये है कि डीप डाउन आप कुरान को समझिए, कुरान को 2 वेज में मैंने आपसे कहा, एकेडमिक और रूहानियत वे में देखिए, अच्छे से समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। लेकिन अब इसके अंदर भी आप अपनी राजधानी दे सकते हैं कि अल्लाह इधर इस चीज की बात मेरे हिसाब से अल्लाह इधर बेनिफिट्स भी बता रहा है, हमें साइंटिफिकली पहलू भी देखना चाहिए। तो कोई और आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में कह रहे कि इतना काफी है ना कि हाँ ठीक अल्लाह ने रखी है, ठीक है, इसके बेनिफिट भी रखे होंगे, वो बहुत खोज में नहीं, तो दूसरा वो मान रहा है तो वो भी सही है। एक है कि वो थोड़ी खोज कर रहे हैं कि हाँ पता हो हमें इसके बेनिफिट, अल्लाह ने हमें कहा है गौर और फिक्र करो, ये लिखा होता है अक्सर जगह कुरान के अंदर, ठीक है, अल्लाह कहता है गौर और फिक्र करने वालों के लिए खूब हिदायत है। तो जब हम गौर और फिक्र करते हैं तो फिर हमें समझ आता है, जब उसको कुछ मुश्किल, जब तबलीग के लिए आपको इतना इल्म और शऊर होना चाहिए कि तबलीग के पेड़े पे ना इल्म और शऊर जब आपके पास इतना होगा तो आप आसानी से उन बच्चों को भी तबलीग कर सकेंगे जो कॉम्प्लिकेशन देते हैं। तो शिर्क की बुनियाद आपको पता हो, एथिक्स की बुनियाद आपको पता हो कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। आगे दिल फेरने का काम अल्लाह का है, हिदायत देना का अल्लाह का काम है, कोशिश करना हमारा काम है। लेकिन इसका मतलब खतई ये नहीं कि हम अपने से एडिशन लगा के तो बोलना शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन।